In this module, you will learn about conic sections. When a straight line intersects a vertical line at a fixed point and rotates about that fixed point, the surface obtained is called a double right circular cone. A double right circular cone consists of two cones joined at a fixed point called the vertex. The line that rotates about the vertex is called the generator, and the line that remains fixed is called the axis. A right circular cone has a circular base, and its axis is always perpendicular line from the center of the base to the vertex. The perimeter of the base is called the directrix. The lateral surface of a right circular cone is called a nap. A double right circular cone has two naps. The nap above the vertex is called the upper nap, and that below the vertex is called the lower nap. Also, the angle between the generator and the axis is called the vertex angle. Conic sections. If a plane intersects a double right circular cone, we get two-dimensional curves of different types. These curves are called conic sections. Depending on the angle made by the plane with the vertical axis of the cone, the plane can cut the cone in three different ways. Ellipse. When the plane intersects the double right circular cone in such a way that the angle between the plane and the axis is greater than the vertex angle, we get a closed curve called an ellipse. When the plane is perpendicular to the axis, the ellipse becomes a circle. Thus, a circle is a special type of ellipse. Parabola. When the angle made by the plane to the vertical axis is exactly equal to the vertex angle, we get an open curve called a parabola at the intersecting surface of the cone. Hyperbola. The plane intersects only one nap of the double right circular cone as long as the angle between the plane and the vertical axis is greater than or equal to the vertex angle. However, if the plane intersects the vertical axis at an angle smaller than the vertex angle, the plane intersects both the naps of the cone to form an open curve called a hyperbola, which has two disjoint curves. Degenerate conics. तो कोनिक सेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे गाइस, है ना। हम लोग कोनिक सेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और कोनिक सेक्शन के रिगार्ड में जब मैं आपको बताऊं कि जो कोनिक सेक्शन होता है, अगर हम उसको रफली समझें तो बेसिकली हमारा जो कोन होता है, ये डबल कोन की हम बात करेंगे, जो जनरेटर होता है हमारे लिए, इसीलिए कोनिक सेक्शन कहलाते हैं, क्योंकि ये जो कर्व्स हैं ये इससे जनरेट होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ये एक्सिस पास आता है और ये एक्सिस होता है इसके अबाउट रोटेट। अब इसको जो एक प्लेन किसी एंगल पे कट करेगा तो यू विल गेट डिफरेंट sections, and those are known as conic sections. So we introduced you roughly कि what exactly this conic sections mean to you, ठीक है ना। इन conic sections का मतलब क्या है, ठीक है, सबको क्लियर हो गया। अब हम इसका डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करते हैं। What exactly is a conic section?
अब बहुत ध्यान से समझना, कोनिक सेक्शन को हम कहते हैं, पहला वर्ड है लोकस। क्या होता है वर्ड पहला बच्चे? लोकस। द फर्स्ट वर्ड विच वी यूज इज लोकस। सो कोनिक सेक्शन इज लोकस। किसका लोकस? एक मूविंग पॉइंट का। देखो ये पॉइंट मैं P लिख रहा हूं, आपको दिख रहा होगा जो पॉइंट है वो P है, ठीक है। सो जो P है वो पॉइंट है। अब ये पॉइंट मूव करेगा कैसे? ये देखो, ये जो पॉइंट मैं ले रहा हूं और डॉट्स ये बन रहे हैं, ये पॉइंट P मूव करेगा। और मूव कैसे करेगा? इस तरीके से मूव करेगा। एक ये पॉइंट S लिखा, आपको दिख गया होगा S। इस P का डिस्टेंस, इस P का डिस्टेंस S से जो होगा, और मैं यहां एक लाइन बना रहा हूं, आपको ये लाइन दिख गई होगी। इस P का डिस्टेंस इस पॉइंट से और एक ये PM डिस्टेंस लाइन से, तो ये आपको एक लाइन दिख गई और ये S जो है ये मेरा एक पॉइंट है। सो S इज ए पॉइंट एंड दिस इज ए लाइन। तो कोनिक सेक्शन क्या होता है? ध्यान से सुन लो। इट्स लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट। किसका लोकस है बेटा? मूविंग पॉइंट का। और वो पॉइंट मूव कैसे करेगा? इट विल मूव इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एस कह दिया मैंने, और टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन। मतलब इस मूविंग पॉइंट का जो डिस्टेंस है फिक्स्ड पॉइंट से, इस मूविंग पॉइंट का जो डिस्टेंस है एक फिक्स्ड पॉइंट से अपॉन इसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड लाइन से इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो बोलने का मतलब है PS अपॉन PM इज इक्वल टू E। ये जो फिक्स्ड लाइन है, ये जो फिक्स्ड लाइन है, इससे ये मूव ऐसे करता है कि जब हम डिस्टेंस निकालते हैं फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट और इस लाइन से, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और इसको हम E से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? E से। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए कोनिक? ए कोनिक इज ए कर्व और इट्स ए लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट। किसका लोकस है बच्चे? एक मूविंग पॉइंट का, जो कैसे मूव करता है? विच मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट टू इट्स रेशियो फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। एंड दिस रेशियो जो कांस्टेंट होता है PS अपॉन PM, उसको हम E से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये E का एक स्पेशल नाम होता है एसेंट्रिसिटी। क्या नाम होता है? एसेंट्रिसिटी। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको ये डायग्राम में लाइन दिख रही है? ये फिक्स्ड लाइन है। और ये S दिख रहा है, ये फिक्स्ड पॉइंट है। और जो P है वो कोई भी मूविंग पॉइंट हम x, y ले लेंगे। सो दे मूव इन सच ए वे दैट its distance from a fixed point to its ratio from a fixed line is always constant। ये जो फिक्स्ड लाइन है, जहां मैंने लाइन लिखी है, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। दिस फिक्स्ड लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। ये जो लाइन जो फिक्स्ड है इसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है S, इसको हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? फोकस। और जो इनका रेशियो होता है E, इस E को हम कहते हैं एसेंट्रिसिटी। क्या कहते हैं बच्चे? एसेंट्रिसिटी। तो जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए कर्व आती है उसको हम कोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोनिक कर्व। तो कई तरह की कर्व्स बनेंगी, ठीक है ना, जो आगे अभी हम देखेंगे। तो ये मूविंग पॉइंट ऐसा है, एक शेप देता रहेगा कर्व्स को। तो अभी हमने देखा एक इलिप्टिकल शेप आ सकता है, एक पैराबोला आ सकता है, एक हाइपरबोला। हाइपरबोला एक्चुअली दो जनरेट होते हैं। तो ये जो है अभी हम आगे देखेंगे, ये एलिप्स हो गया, ये पैराबोला हो गया और ये हाइपरबोला हो गया। तो इस तरीके से ये कर्व्स जनरेट होके आते रहते हैं। अब हमारे लिए वेरियस टर्म्स को समझने की जरूरत है कि इनमें क्या क्या टर्म्स होती हैं। तो आइए इसका ऑफिशियल डेफिनेशन देखते हैं हम लोग।
अब आप बोर्ड पे देख सकते हैं व्हाट इज ए कोनिक। ठीक है, मैंने आपके लिए बोर्ड पे कोनिक तैयार कर दिया है। ठीक है ना, तो हम एक एक करके कोनिक देखते हैं। पहले कोनिक का मतलब क्या है बच्चे? सो व्हाट इज ए कोनिक सेक्शन? आप पढ़ सकते हैं, कैन यू रीड इट? ए कोनिक सेक्शन और कोनिक is locus of a moving point P which moves in such a way that its distance from a fixed point to its distance from a fixed line is always constant। सब लोग पढ़ पा रहे हैं गाइज? ये डेफिनेशन जो लिखी है, किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही गाइज? ये डेफिनेशन जो लिखी है सबको समझ में आ गई? डेफिनेशन जो है, आई होप आपको दिख रहा है ये डेफिनेशन जो लिखा है कोनिक सेक्शन का, किसी को दिक्कत तो नहीं है? और एज पर ये डेफिनेशन देखो बच्चे, इसका मतलब क्या है कि ये जो कोनिक होता है, अगर मैं इस पॉइंट को P बनाऊं तो ये डिस्टेंस PM होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या होगा? PM। और ये एक पॉइंट S ले लिया तो ये PS होगा। आप देख सकते हैं ये, तो इस डिस्टेंस के हिसाब से जो PS अपॉन PM होगा वो कांस्टेंट होगा और E होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि PS अपॉन PM जो होता है वो E के बराबर होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यही चीज इसमें लिखी हुई मिलेगी। अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसको हमने फोकस बोलना है, तो कर्व जब बनेगी तो फोकस भाई साहब भी आएंगे। ठीक है ना, तो जो ये फिक्स्ड पॉइंट है S, समझ में आया बेटा? इज कॉल्ड फोकस ऑफ द कोनिक सेक्शन। और ये जो फिक्स्ड लाइन है इसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? डायरेक्ट्रिक्स। और ये जो रेशियो है मेरा, ये एसेंट्रिसिटी है। ओहो, ये जो फिक्स्ड रेशियो है इसको हम एसेंट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, ये जो फिक्स्ड रेशियो है इसको हम एसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो ये जो रेशियो होता है बच्चों, ये जो रेशियो होता है इसको हम कहते हैं एसेंट्रिसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय E। अब देखिए, मैं इसमें और टर्म्स आपको इंट्रोड्यूस करता हूं, और टर्म्स भी आएंगी। एक्सिस, ठीक है ना, एक्सिस क्या है? अब जब हम एक्सिस की बात करेंगे तो एक्सिस एक्चुअली है क्या? ठीक है ना, अब एक्सिस की जब हम बात करते हैं तो इसमें मेरा मिट गया, मैं फिर से लिख देता हूं। व्हाट इज एक्सिस? ठीक है ना, द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस, द लाइन passing through focus and perpendicular to the directrix। The line passing through the focus। अब एक लाइन सुनो बच्चे, मैं बना रहा हूं, आप देखना यहां, एक लाइन जो किससे पास करने वाली है? मेरी फोकस से, और किसके परपेंडिकुलर होने वाली है? डायरेक्ट्रिक्स के। सो एक लाइन दैट पासेस थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द कोनिक, इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द कोनिक। समझ में आया गाइस? डेफिनेशन समझ में आया? एक लाइन जो फोकस से पास करेगी और डायरेक्ट्रिक्स, ये कौन है? देखो बेटा, डायरेक्ट्रिक्स, इसका नाम ले दिया हमने डायरेक्ट्रिक्स। ये कौन है? ये फोकस है। और ये कौन बन गया? अब ये बन गया एक्सिस। समझ में आ गया? और जहां ये कर्व, जैसे मान लो
मैंने P से बनाया और ऐसे कोई एक आर्बिट्री कर्व आ गया, तो जहां ये इंटरसेक्ट करेगा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक, ये देखो ये कर्व मैंने ए पे इंटरसेक्ट करा है, इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये जो पॉइंट आ रहा है बेटा, ये वर्टेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्टेक्स। निखिल जैकब, समझ में आया बेटा आपको कि ये जो कर्व है, ये पी से मैंने बनाया, आर्बिट्री शेप दिया, ये कर्व जहां भी एक्सिस को मीट करेगी, एक्सिस मैंने मार्क कर दी है, जहां भी ये कर्व एक्सिस को मीट करेगी, उस कर्व को, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहेंगे। आपको क्लियर हो गया वर्टेक्स क्या होता है? इज इट क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय वर्टेक्स? ठीक है, वर्टेक्स क्लियर हो गया बच्चों। चलो अब एक टर्म और ले लेता हूं मैं, यहां पे एक काम करता हूं, थोड़ी सी जगह बनाते हैं, दे दो भाई थोड़ी सी जगह, देखे कहां तक अलाउ करता है ये मेरे को। ओके, है ना, आई होप यू कैन सी, दिख रहा हूं। अब मैं आपको एक और कर देता हूं टर्म, लैटिस रेक्टम। चलो लैटिस रेक्टम, ये मेरा यहां आ गया एकदम ठीक, एकदम ठीक। हाँ, सबको दिख रहा होगा ऑलमोस्ट। नाउ we'll have one more term, latus rectum. एक और टर्म लिख रहा हूं बेटा, लैटिस रेक्टम। क्लियर है? लैटिस रेक्टम। अब लैटिस रेक्टम क्या होता है? लैटिस रेक्टम भी एक कॉर्ड है। लैटिस रेक्टम एक कॉर्ड होगा जो फोकस से पास करेगा। कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। तो व्हाट इज द लैटिस रेक्टम? chord passing through the focus, a chord passing through the focus and perpendicular to axis, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, and perpendicular to the axis is called, चलिए कंप्लीट होता है, a chord passing through the focus and perpendicular to the axis, a chord passing through the focus and perpendicular to the axis is called latus rectum. इसको हम लैटिस रेक्टम बुलाएंगे। आपको देखो फिगर में मैं बनाता हूं, एक मिनट, थोड़ा सा हमारा एस एक्स्ट्रा आ गया, इस एस को हम हटा देते हैं। ठीक है गाइस, चलो अब मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूं कि कैसा फिगर बनेगा। ये तो एक कॉर्ड, देखो कॉर्ड का मतलब है इस पॉइंट पे, एक कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ये जैसे एल हो गया, ये एल डैश। ऐसे तो मैं बहुत सारे कॉर्ड बना सकता हूं, लेकिन हर कॉर्ड लैटिस रेक्टम नहीं होता। वही लैटिस रेक्टम होता है जो फोकस से पास तो करे लेकिन एक्सिस के परपेंडिकुलर भी हो। तो एक कॉर्ड जो फोकस से पास करे और परपेंडिकुलर हो एक्सिस को, ये लैटिस रेक्टम कहलाता है। सो दिस आर सम ऑफ द टर्म्स which are used in conic. These are some of the terms, children, which we use in the conic section. तो जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे, ये सारी टर्मिनोलॉजी हमारे पास आती रहेगी। So these are the few terminologies that we will have. ठीक है ना, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो अपने पास यूज होती रहेंगी और आती रहेंगी। ठीक है,
So this is what the terminologies which we will be using. I hope everybody is clear. अब हम इसमें स्पेसिफिक उस पे जाते हैं, कोनिक्स पे हम लोग स्पेसिफिक उस पे चलेंगे। अब आपको सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूं पैराबोला। तो सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस किया कौन सा गोला बोला? पैराबोला। पैराबोला एग्जैक्टली होता क्या है? पैराबोला इन्हीं कोनिक्स का एक जनरेटेड कोन है। आपने देखा जो वर्टेक्स और प्लेन और एक्सिस के बीच एंगल होती है वो इक्वल हो जाती है। खैर हमें उतनी डिटेल में सीबीएसई में नहीं जाना है। पैराबोला क्या होता है? पैराबोला वही लोकस है मूविंग पॉइंट का सच दैट PS अपॉन PM इज इक्वल टू 1, यानी कि जब PS अपॉन PM 1 हो जाए तो जो कर्व आती है उसको हम कहते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं बच्चे? पैराबोला। तो मान लीजिए पॉइंट है P आपका XY, ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है S और ये कोई डिस्टेंस है M। तो जब ये PS अपॉन PM, बेटा जब PS अपॉन PM 1 हो जाएगा यानी PS इज इक्वल टू PM, PS इज इक्वल टू PM हो जाएगा, जो कर्व जनरेट होगी उसको हम कहेंगे पैराबोला। क्या कहेंगे बेटा? उसको हम कहेंगे पैराबोला। आपको क्लियर हो गया पैराबोला का डेफिनेशन? पैराबोला इज लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे that its distance from a fixed point is equal to its distance from a fixed line। और ये सब एक ही प्लेन में है, all lying in the same plane। ये सब हम एक ही प्लेन में बात कर रहे हैं, not in different planes। so PS upon PM जब इक्वल हो जाते हैं 1 के, यानी कि PS equal to PM, you get a curve called parabola। now what is the fixed line? fixed line is called डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स्ड लाइन क्या होता है बेटा? डायरेक्ट्रिक्स। और जो पॉइंट होता है फिक्स्ड उसको क्या कहते हैं हम? फोकस। अब इस डेफिनेशन के ऊपर हम स्टैंडर्ड और ये करेंगे डिराइव। एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको करिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। एक पैराबोला की इक्वेशन निकालने को बोलते हैं, बेसिक कर रहे हैं बहुत। हुज फोकस, ये फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस। हुज फोकस इज, इसका फोकस जो है वो है -3,2 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x plus y equal to 4। x plus y equal to 4, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। Now what is definition of a parabola? Parabola is locus of a moving point which moves in such a way that its distance from a fixed point called focus, its distance from a fixed point called focus to its fixed distance from a fixed line called directrix। ये लाइन जो है डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये डेफिनेशन है। अब देखो, लेट P x, y be the moving point। इसको हम मूविंग पॉइंट ले लेते हैं। लेट P x, y be the moving point। now what is PS? PS will be, S क्या है? -3,2। so PS will be under the root, डिस्टेंस फॉर्मूला आता है ना गाइस, 10th में पढ़ा है, x plus 3 का स्क्वायर प्लस y minus 2 का स्क्वायर। समझ में आया? बोलो गाइस। x minus x1 का स्क्वायर प्लस y minus y1 का स्क्वायर। so x plus 3 का स्क्वायर प्लस y minus 2 का स्क्वायर। ये PS आ गया। अब PM, बेटा याद है PM कैसे निकालते हैं? आप सब भूल गए, सब भूल गए बच्चे। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। अब जो डायरेक्ट्रिक्स है मेरी वो क्या है? यहाँ पे x प्लस y -4 इक्वल टू 0।
अब इस पॉइंट का डिस्टेंस x, y का इस लाइन से निकालना है। तो x1 के जगह x ही है और y1 के जगह y है, -4 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई लोगों, याद है आप लोगों को बच्चों कि हमने पढ़ा था ax1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है ये? तो ये हो जाएगा x प्लस वाई -4 मॉड के साथ अपॉन √2। अब कंडीशन लगाइए। कंडीशन क्या है बच्चे? PS शुड बी इक्वल टू PM। पैराबोला के लिए PS शुड बी इक्वल टू PM। तो √x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई -4 अपॉन √2। ये इक्वल हो जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए एंड स्क्वायरिंग करने के बाद गाइस जो आंसर आएगा वो पैराबोला की इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन। सो x प्लस 3 प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर कर देंगे तो x प्लस वाई -4 का होल स्क्वायर बाई 2। स्क्वायरिंग किया तो क्या आ जाएगा बच्चे? एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 -4y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? एक्स स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 8x माइनस 8y अपॉन 2। यही आ जाएगा अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 18 प्लस 12x प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8 माइनस 8y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2xy माइनस 8x माइनस 8y। सब इधर ले आओ गाइस, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 12x और ये 20x आ जाएगा और y तो कैंसिल आउट हो गया, 8y और 8y तो उड़ गया और xy कितना है? 2 है ना, तो -2xy हो जाएगा लेफ्ट में और कांस्टेंट टर्म 18 प्लस 8 माइनस 16 तो कितना आ रहा है? ये हमारा कांस्टेंट टर्म कितना आ रहा है? अच्छा 4 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस दिस 18 26 प्लस 10 आ रहा है ना 10। देखो गाइज ये आपका आंसर आना चाहिए, प्लीज चेक इट। कोई कैलकुलेशन कोई एरर हो तो देखते हैं। Now we'll try to go and derive standard equation of parabola. स्टैंडर्ड इक्वेशन की हम बात करेंगे जो हमारे कोर्स में है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला यही मेरे कोर्स में है बच्चे, जनरल इक्वेशन हमारे कोर्स में नहीं है, तो पहले ही कट गई थी। अब हमारे को जो समझना है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला समझना है। कौन सी इक्वेशन समझनी है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब क्या है? हम लोग जो इक्वेशंस पढ़ेंगे बेटा वो स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ते हैं जिसके ऊपर हम डिराइव करते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम स्टैंडर्ड, अब इसमें हम एक फोकस ले लेते हैं। एस हमारा जो मैंने लिखा है फोकस, और एक मैं डायरेक्ट्रिक्स बना रहा हूं जेड जेड डैश, ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। सो लेट एस बी माई फोकस एंड दिस जेड जेड डैश बी माई डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। यहां से एक मैं परपेंडिकुलर बना रहा हूं इसके ऊपर। सो आई एम ड्रॉइंग ए परपेंडिकुलर ऑन द डायरेक्ट्रिक्स meeting at some point K. So z dash is my directrix, z dash जो है वो मेरी डायरेक्ट्रिक्स है, समझ में आ रहा है आपको। और S फोकस हो गया
और S से लेके मैंने एक परपेंडिकुलर बना दिया, S से लेके मैंने एक परपेंडिकुलर बना दिया। सो S से लेके जो हमने परपेंडिकुलर बना दिया, ठीक है, और यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया जिसको मैंने कहा कि इसका मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? SK का। सो A is any point on SK such that AK is equal to SA, such that AK is equal to SA। और ये जो A है, मैं अपने कन्वीनियंस के लिए, जो हम कन्वीनियंस की बात करते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस को हम 2A ले लेते हैं। लेट दिस टोटल डिस्टेंस भी बराबर टू 2A, ठीक है। और इस तरीके से हम A को ओरिजिन चूज कर लेते हैं, ठीक। सो फॉर सिंप्लिसिटी हम A को ओरिजिन ले लेते हैं और A जो है इनके मिड पॉइंट पे आ रहा है, मतलब A के राइट में डिस्टेंस भी A यूनिट हो गया। वैसे डिस्टेंस वाइज -A होगा, ये लेफ्ट साइड है। तो ये जो लाइन है बेटा, मैं देखो यहाँ पे x इक्वल टू -A लिख दे रहा हूँ। अब आपको समझ में आएगा वाई हैव रिटन -A, क्योंकि अगर A ओरिजिन है, राइट में A है तो लेफ्ट में -A हो जाएगा। तो ये जो लाइन है मेरी, ये फिक्स्ड लाइन है और ये जो पॉइंट हो गया, अब S से आप देखो आगे बढ़ा रहा हूँ, A,0 हो गया। तो S मेरा A,0 पे ले लिया। तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में जब पढ़ते हैं तो एक एक्सिस के ऊपर फोकस को लाई कराएंगे, इधर एक्स एक्सिस पे लाई कराएंगे या वाई एक्सिस पे लाई कराएंगे। तो मैंने A,0 पे राइट साइड ऑफ ओरिजिन लाई करा दिया और लाइन ओरिजिन के लेफ्ट में आ गई और इनके बीच का डिस्टेंस 2A हो गया। अब एक पॉइंट P मार्क कर रहा हूं यहां, जनरल पॉइंट PXY, जनरल पॉइंट PXY। अब P का डिस्टेंस S से और P का डिस्टेंस M से, P का डिस्टेंस S से और P का डिस्टेंस M से। तो नाउ PS अपॉन PM जो है वो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? PS अपॉन PM 1 हो जाएगा। अब PS अपॉन PM 1 हो जाएगा तो PS इज इक्वल टू PM हो जाएगा। अब हमारे को जो इक्वेशन निकालनी है वो पैराबोला की निकालनी है, क्या आएगा, ठीक है। मैं फिगर थोड़ा और क्लियर हो तो आपको दिखा दूं। ये फिगर आप देख पा रहे हैं। सो दिस इज द फिगर विच एक्चुअली इट इज। आई होप यू ऑल कैन सी द फिगर कि ये जो S है वो फोकस है, K तक हमने ये परपेंडिकुलर बनाया है और A ओरिजिन लिया है जहां पे बाइसेक्ट हुआ है 0 0। ये डिस्टेंस भी A है, ये डिस्टेंस भी A है, दोनों तरफ A डिस्टेंस है, डिस्टेंस। और वैसे मैं इक्वेशन की पॉइंट से लूंगा तो बेटा लेफ्ट राइट में नेगेटिव पॉजिटिव। अब PS इज इक्वल टू PM, क्योंकि भाई साहब ये पैराबोला है। तो PS देखो क्या होता है मेरे बच्चे, PS देखो x माइनस A का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। अब देख लो। और बेटा PM, कोई बता सकता है मेरे को फटाफट PM क्या होगा? व्हाट विल बी PM? मुझे पता है कई लोग नहीं बता पाएंगे, प्राइम मिनिस्टर मत बोलना। PM हमारे फिगर में यहाँ PM क्या होगा? PM डिस्टेंस PM कितना होगा? कोई बता सकता है फटाफट? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट विल बी द डिस्टेंस PM? किसी का नहीं आया, सब गायब है। अरे भाई PM कैसे निकालेंगे? PM अब हमें क्या पता, हमने थोड़ी कुछ सीखा है ना। हाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, सिमर सिमर सिमर। वो वैसे मत देखो इसको, वो खैर अलग बन गई स्ट्रेट लाइन, पर वैसे नहीं है। 2 डी थोड़ी है यार, कुछ भी बोलते हो। सिमर वो आप उस हिसाब से मत देखो, M टेढ़ा भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। हाँ अब देखो PM कैसे निकलेगा, पहले इक्वेशन देखो डायरेक्ट्रिक्स की। लेट अस सी, देखो बहुत लोग लिख रहे हैं। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये है, तो मैं कह सकता हूँ x प्लस ए इज इक्वल टू 0, ये डायरेक्ट्रिक्स है। समझ में आया सबको? अब देखो गाइज, आप डिस्टेंस ऑफ P XY, तो x की जगह तो x है, y की जगह कुछ नहीं है,
तो 0 इंटू वाई लिख रहा हूं, क्योंकि जो ये इक्वेशन है देखो कौन सी, मैं जो सर्कल कर रहा हूं x प्लस ए इक्वल टू 0, उसमें y की टर्म है ही नहीं, तो जब y कोऑर्डिनेट के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा प्लस a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो x तो 1 स्क्वायर हो गया, y नहीं है 0 स्क्वायर, तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस आ जाएगा गाइस वो x प्लस ए ही आएगा। देखो x प्लस ए ही आएगा, समझ में आया? क्या डिस्टेंस आएगा? x प्लस ए आया समझ में गाइस? डिस्टेंस x प्लस ए आएगा। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? सो विल गेट द डिस्टेंस एज x प्लस ए। अब हम इसकी इक्वेशन डिराइव करते हैं बच्चे, जो हमें याद भी रखनी है। तो अब स्क्वायरिंग कर रहा हूं गाइस, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, ये आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया ना गाइस सब कुछ? मेरे को लग रहा है ऐसा कुछ आ गया, आपका भी ऐसा कुछ आया है क्या? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ऐसा कुछ आया क्या गाइस? ऐसा कुछ आ रहा है ना? तो यही स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है जो एक्स एक्सिस के अलोंग फोकस होगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आप देखो इस सब में हर चीज मिल जाएगी, वर्टेक्स दिख रहा है आपको, फोकस दिख रहा है, डायरेक्ट्रिक्स दिख रहा है, ये लैटिस रेक्टम भाई साहब दिख रहे हैं। अब इसका शेप ऐसा क्यों बनाया है मैंने, वो चीज समझाने लायक है। Why I have made the shape like this, इसका शेप ऐसा क्यों आएगा, हम उसका जिक्र कर लेते हैं। एक सेकेंड गाइस, बीच में देख लूं चैट, ठीक है। अब देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax आ गया। नाउ एक एक चीज करके अगर हम देखें, हम थोड़ा पीछे चलते हैं। हमने ये पॉइंट P लिया था x, y और m ये लाइन थी ये। अब मेरे पास देखो गाइस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax आ गया। पहले बात तो बताओ, ये इक्वेशन मैंने डिराइव की कंडीशन से, किसी को प्रॉब्लम इसमें? किसी को नहीं प्रॉब्लम। अब ये शेप ऐसा क्यों आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानने वाली बात है। पॉइंट वन कर्व पासेस थ्रू 0,0, बोलो ट्रू या फॉल्स। ये कर्व 0,0 से पास करेगी कि नहीं बताओ मेरे को। क्या 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है गाइस? क्या 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? एकदम कर रहा है। x को 0 डालेंगे तो y को 0 आ जाएगा, तो यानी कि ये कर्व ओरिजिन से पास करेगी। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2 बहुत ध्यान से समझना गाइस, बहुत ध्यान से समझना, एकदम इंपॉर्टेंट, आपको इस बात को समझना है। ये जो कर्व है, ध्यान से देखो जो मैं लिख रहा हूं, कर्व इज सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। समझिए बात, मैंने ऐसा क्यों कह दिया कि ये कर्व इज सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है या नहीं? बात समझ में आई? आप y को माइनस वाई से रिप्लेस करो। y को किससे रिप्लेस करो गाइस? माइनस वाई से। अगर कर्व की इक्वेशन चेंज नहीं होती तो वो कर्व y एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगी। फिर से समझो, when you put y के जगह minus y and equation of curve does not change, then such curve will be symmetric with respect to x axis। मतलब for a given value of x there will be two values of y। एक x की वैल्यू के लिए दो वैल्यू होंगी y की। समझ में आई मेरी बात की नहीं आई?
और अगर x एक्सिस के y एक्सिस के अबाउट कोई कर्व सिमेट्रिक है तो x के जगह माइनस एक्स रखें, x के जगह क्या रखें बच्चे, माइनस एक्स। और अगर इक्वेशन चेंज नहीं हुई तो वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस आ जाएगा। और जब आपने दोनों जगह x को माइनस एक्स रखा और y को माइनस वाई रखा और दोनों में चेंज नहीं हुआ तो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगी। तो अभी हाल फिलहाल मेरी जो कर्व है, जब मैं y के जगह माइनस वाई रखता हूं, y के जगह क्या रखता हूं बच्चे, माइनस वाई, तो क्या कर्व की इक्वेशन चेंज हो रही है, कर्व की इक्वेशन चेंज नहीं हो रही। आप देख सकते हैं कि y का स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर दोनों सेम देगा। इसका मतलब देखो बच्चे क्या, इसका मतलब समझो, अरे यार समझो, अब देखो सुनो समझो बात को। अब जैसे मैं बहुत सिंपल सी कर्व, सिमर बेटा ध्यान दो इधर, मैंने a को 1 लिया फॉर एग्जांपल, तो ऐसा कोई कर्व आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, आएगा कि नहीं आएगा। x को अगर मैं 1 लेता हूं बच्चे तो वाई स्क्वायर 4 होता है, कहने का मतलब y प्लस माइनस 2 होता है, एकदम होता है। तो अगर ये इधर है, एक पॉइंट इधर आया तो एक पॉइंट इधर भी आएगा। दो क्रॉस मैंने बना दिए कि फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एक्स वाई। इसी तरह x को हम वैल्यूज कुछ भी देंगे, फॉर ईच वैल्यू यू विल हैव 2, देख रहे हो आप, फॉर ईच वैल्यू, तो ये पॉइंट्स ऐसे होंगे। तो इसीलिए जब हम इस कर्व को लेंगे ये ऐसे कर्व आएगा। थर्ड, कर्व will not meet any point on left of a। क्यों लेफ्ट ऑफ ए कर्व नहीं जा सकती, मैंने लिख दिया जी। क्यों लिख दिया, क्यों लिख दिया भाई, देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, अगर x नेगेटिव हो गया तो वाई स्क्वायर डिफाइन ही नहीं होगा। कर्व विल नॉट मीट एनी पॉइंट ऑन लेफ्ट ऑफ ए इफ x इज नेगेटिव, वाई स्क्वायर विल नॉट बी डिफाइंड, विल नॉट बी डिफाइंड, देख लो आप। तो इसीलिए कर्व 0 0 से टर्न ले लेती है, क्योंकि अगर x नेगेटिव है तो वाई स्क्वायर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो नो पोर्शन ऑफ दिस कर्व लाइज टू द लेफ्ट ऑफ ए। ये कर्व a या उसके राइट में है और सिमेट्रिकल है, तो जैसे x एक्सिस के ऊपर बनेगी वैसे ही x एक्सिस के नीचे बनेगी। तो दैट इज हाउ दिस पैराबोला शेप्स लाइक, दिस इज हाउ दिस पैराबोला शेप्स लाइक। बात समझ में आई? ये कुछ छोटी सी बातें थी जो कि हमें इस कर्व को ट्रेस करने में हेल्प कर रही है। नाउ if you see this diagram, now you should be clear why this curve is passing through origin. Now what is the vertex? A line passing through the focus, a line passing through the focus and perpendicular to axis। ये एक axis हो गया, ये मेरी axis हो गई। अब समझ में आया? इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चे, एक्सिस। और जहां एक्सिस और कर्व, जैसे आप देखो ये कर्व 0 0 पे मीट कर रही है, इसको हम वर्टेक्स बोलेंगे। तो जो ए भाई साहब हैं, अनन्या आपको क्लियर हो गया होगा, वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट होता है जहां कर्व एक्सिस को मीट करती है। और इस केस में क्लियरली कर्व 0 0 पे एक्सिस को मीट कर रही है, 0 0 एकदम सेटिस्फाई कर रहे हैं वॉट एवर बी ए हम यहाँ ग्रेटर देन 0 लेके चल रहे हैं इस केस में। आई बात समझ में आपको? अब मेरे को आपको कोई पॉइंट समझाने की जरूरत है। अब आप देखो सिमेट्री क्यों आ रही है, क्योंकि इस कर्व में जो मैंने डिराइव किया y के जगह माइनस वाई रखूंगा तो सेम ही चीज आ रही है, इसीलिए सिमेट्री है। दूसरी चीज, ये कर्व 0 0 पे मीट कर रही है तो वो वर्टेक्स हो गया। कोई पोर्शन इस कर्व का लेफ्ट ऑफ ए नहीं जा सकता, अगर लेफ्ट ऑफ ए गया तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं रहेगी, ये इक्वेशन इनवैलिड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया? अब मेरा एक काम रह गया, कौन बच्चा मुझे दो चीजें बताएगा। एक मैं लिख रहा हूं बच्चा यहां
इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम कौन बताएगा? देखें कौन मेरा प्यारा बच्चा है जो मेरे को फटाफट जवाब देगा कि क्या है। और एक है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होगी। मैं देखना चाहता हूं फटाफट, अभी तक तो जवाब आ जाना चाहिए था। आप लोग छुट्टियों के बाद बहुत हल्के हो गए हो। What is the length of latus rectum? Latus rectum की लेंथ क्या है एंड इक्वेशन ऑफ latus rectum क्या है? फटाफट बता दो गाइज, इक्वेशन ऑफ latus rectum क्या है और लेंथ क्या है? हाँ जी, जवाब आया, जवाब देखते हैं फटाफट। अब देखो बच्चे, latus rectum को अगर मैं बोलूं तो ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और राइट साइड में है। कितने डिस्टेंस पे है? ए डिस्टेंस पे। क्यों ए डिस्टेंस पे? आप देखो फोकस से पास कर रही है। सो इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम है x इक्वल टू ए। x इक्वल टू ए, सबको समझ में आ गया? तो यानी कि ये जो L पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट a होगा। किसी को डाउट नहीं है, किसी को डाउट नहीं है कि x कोऑर्डिनेट a होगा। समझ में आ गया? अरे बोलो भाई, समझ में आ गया? इसकी लेंथ निकालनी है तो y कोऑर्डिनेट चाहिए। अब देखो बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। देखो x a है तो x को a रखो, x इक्वल टू a, तो वाई स्क्वायर विल बी 4a स्क्वायर, तो y विल बी प्लस माइनस 2a। y की दो वैल्यू आएगी, एज आई टोल्ड यू विल ऑलवेज गेट टू वैल्यूज। तो देखो बेटा, ये जो लेंथ आ गई ये 2a है कि नहीं है? तो ये कोऑर्डिनेट a, 2a है। तो ये सिमेट्री है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा? a, माइनस 2a, l डैश। लेकिन हम लेंथ निकाल रहे हैं। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज l डैश। डिस्टेंस फॉर्मूले से ही निकाल लो, चाहे कैसे भी निकाल लो। a माइनस a का स्क्वायर, आपको समझाने के लिए, नहीं तो डायरेक्ट ही है। तो डिस्टेंस कुछ बड़ी बात है ही नहीं इस डिस्टेंस में। ऊपर 2a नीचे 2a, माइनस 2a होल स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर प्लस 4a होल स्क्वायर, तो यानी कि 4a। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम याद रखना बेटा 4a। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। समझ में आया? और एक चीज और बता दूं, अब वाई स्क्वायर इक्वल टू हम 4ax लिखते हैं ना बच्चे। देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मैं lx लिख सकता हूं? l इज द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। आप देखो 4a है, तो पैराबोला की इक्वेशन हम वाई स्क्वायर इक्वल टू lx भी लिख सकते हैं। बोलो ना, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो ये सारी कहानी थी पैराबोला की। तो आइए हम लोग कुछ और आगे चलते हैं और इसका काम करते हैं, ठीक है ना? चलिए हम अपनी टेबल को फिल करते हैं थोड़ी सी। ये आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे ये पर्टिकुलर्स, और मैं मेरा पहला पैराबोला ले लेता हूं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। 3 और आएंगे, पहले इसको बोलें। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, तो लिख दीजिए 0 0। टेबल बनानी है भाई, देखनी नहीं है, टेबल बनानी है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, इसका फोकस होता है a0 पे, ये लिख दीजिए। डायरेक्ट्रिक्स होती है x इक्वल टू माइनस ए, अभी हमने बनाया, लेफ्ट साइड में आती है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस गाइज, ये जो पैराबोला इसकी एक्सिस कौन होती है? x एक्सिस, यानी कि y इक्वल टू 0 होगा गाइज, यानी कि y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एक्सिस है ये। लैटिस रेक्टम राइट साइड में होता है एट ए डिस्टेंस से। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4a, इतना भर लो। फिर फोकल डिस्टेंस भी बताएंगे क्या होता है। व्हाट इज द फोकल डिस्टेंस अभी आपको बता देंगे। फटाफट लिख लो गाइज, इतना फटाफट लिखो। तो आई होप यू ऑल हैव नोटेड दिस। अब फोकल डिस्टेंस की बात करते हैं। चलिए अपने डायग्राम पे चलते हैं। फोकल डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस है फोकस से, इसको हम फोकल डिस्टेंस कहते हैं। तो फटाफट बता दो फोकल डिस्टेंस क्या होगा, PS क्या होगा? व्हाट विल बी PS?
फटाफट बता दो गाइस यार, फटाफट बताओ कि फोकल डिस्टेंस का आंसर क्या होगा। व्हाट विल बी फोकल डिस्टेंस? कोई बता रहा है? कोई नहीं बता रहा, मुझे ही बताना पड़ेगा। दिमाग चलाओ। पीएस क्या होगा गाइस? पीएस क्या होगा? हाँ, यहाँ फंस जाते हैं सर, निकाल देंगे। निकालना थोड़ी है, पैराबोला है। पैराबोला में पीएस और पीएम एक ही होता है। देखो मैंने पीएम निकाला था, देखे? हाँ, कोई आया चार्ट पे? ये नहीं करना, ये नहीं करना बस। तो पीएस इक्वल टू क्या होता है आप देखो, पीएम। और पीएम क्या निकला था? एक्स प्लस ए निकला था कि नहीं? एक्स प्लस ए निकला था। तो बस कुछ नहीं सोचना, फोकल डिस्टेंस ए प्लस एक्स। फोकल डिस्टेंस क्या होगा गाइस? फोकल डिस्टेंस होगा ए प्लस एक्स। तो जो फोकल डिस्टेंस हम निकालेंगे वो होगा ए प्लस एक्स। एवरीबडी क्लियर? ठीक है। अब देखिए गाइस, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड एवरीथिंग। अब ऐसे ही लिखवाता हूं, बुक्स में एवरीथिंग नहीं लिखा आएगा। फाइंड एवरीथिंग फॉर द पैराबोला, फाइंड एवरीथिंग फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इस पैराबोला के लिए सब कुछ निकालिए। फाइंड एवरीथिंग फॉर दिस पैराबोला। चलिए, कंपेयरिंग विथ गाइस, कंपेयरिंग विथ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। बेटा इसको किससे कंपेयर करना है हमें? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से। तो 4a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 4। तो a की वैल्यू 1। ये हमारा हीरो है। कौन है हमारा हीरो? 1 है। बस a आ गया, सब कुछ आ गया। a आ गया, सब कुछ आ गया। सब कुछ का मतलब बोले तो वर्टेक्स, फोकस, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, वो पूरी टेबल है ना, वही करनी है, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, ये पूछ सकते हैं, तो ये लगा दिया। और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, और फोकल डिस्टेंस, है ना गाइज ये। अब वर्टेक्स क्या होता है गाइज? आप बताओ वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स होता है 0 0 इस पैराबोला का। फोकस होता है a0, a कितना है? 1। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है x इक्वल टू माइनस ए, तो x इक्वल टू -1। इक्वेशन ऑफ एक्सिस y इक्वल टू 0, x एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम x इक्वल टू a यानी कि 1। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4a होता है, तो a 1 है, 4 होगा। फोकल डिस्टेंस a प्लस एक्स यानी कि 1 प्लस एक्स। ये सारे डिस्टेंसेस आ जाएंगे गाइस। समझ में आया गाइस? समझ में आया ना? हाँ, आप सबको आ रहा है? हाँ, मैं देख रहा हूं आप लोग कर रहे हैं, वेरी गुड। सबका आंसर आ रहा है, दैट इज वेरी गुड। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना गाइस? आर यू एबल टू डू इट? क्लियर हो गया ना? ऐसे ही क्वेश्चन एप्लीकेशन में आएंगे जो हमें और आपको समझने हैं, करने हैं, सीखने हैं, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू कम। अब इसी के पैरेलल एक पैराबोला और बता देता हूं आपको, जो हमने y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पढ़ा है, इसी के उल्टा पैराबोला हो जाता है -4ax। मतलब क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं है, ये मूविंग पॉइंट यहां आ गया, फोकस यहां आ गया, और डायरेक्ट्रिक्स यहां आ गया। समझ में आया? ये डायरेक्ट्रिक्स बन गया और ये फोकस ऐसे बन गया, तो वही PS इक्वल टू PM लगाएंगे आप। सो एवरीथिंग विल रिमेन सेम, दिस विल बी द सेकेंड पैराबोला। तो अब आप क्या करो, ये दूसरी पैराबोला होगी -4ax। अब चूंकि यहां माइनस आ गया बाहर, इट कैन नॉट गो टू राइट, x पॉजिटिव होगा तो ये डिफाइन नहीं होगा, तो इसीलिए इसका वर्टेक्स होता है 0 0।
फोकस क्या होगा -a0, डायरेक्ट्रिक्स अब राइट में आ गया x इक्वल टू ए, एक्सिस वही रहेगा y इक्वल टू 0, लैटिस रेक्टम लेफ्ट में आ जाएगा, जो वहां राइट था लेफ्ट, लेंथ तो कांस्टेंट ही होती है 4a, ठीक है, और जो फोकल डिस्टेंस है वो a माइनस x हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी विल गेट एज द डिटेल्स। तो आपके पास ये दूसरा पैराबोला आ गया जिसकी हम ऐसे, तो वो लेफ्ट में बनेगा, ठीक है ना, और इस तरीके से आ जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं वो सेम रहती हैं, बस आपको निकालना और वैल्यूज के साथ करना है, ठीक है। तो आप जो वर्टेक्स है वो सेम रहेगा, फोकस में चेंज आ गया, a0 के जगह -a0, डायरेक्ट्रिक्स सेम रहेगा, एक्सिस सेम रहेगी, लैटिस रेक्टम a और -a, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम में चेंज आएगा, लेंथ तो 4a होती है कांस्टेंट रहेगी, और यहाँ a माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस जो है वो x इक्वल टू a से जब हम निकालेंगे तो डिस्टेंस a माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर बस एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूं, ताकि यही सब क्वेश्चंस करने हैं गाइस, हमें यही सब करने हैं। अब तुम देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x है, ठीक है ना, फाइंड एवरीथिंग, जो जो चीजें आप इसमें आप देख सकते हो आप इसकी एवरीथिंग निकाल के बताओ, वही सारी डिटेल्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, फाइंड एवरीथिंग। तो फर्स्ट कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करेंगे बच्चों, कंपेयरिंग विथ क्या होगा, कंपेयरिंग विथ होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ध्यान रखना -4ax, तो -4a इज इक्वल टू -8, a की वैल्यू 2 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 2। तो वर्टेक्स 0 0, फोकस, इसका फोकस क्या होता है बच्चे -a,0, तो विच इंप्लाइज -2, 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्या होगा x इक्वल टू a, तो उसका मतलब है x इक्वल टू x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू -2, -a होगा ना, x इक्वल टू -a होगा, तो x इक्वल टू -a होगा, तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ एक्सिस तो वही रहता है ना, इक्वेशन ऑफ एक्सिस थोड़ी चेंज होगा। इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, वो लेफ्ट में आ गया, अब लैटिस रेक्टम तो लेफ्ट में आ गया, तो क्या हो गया x इक्वल टू -a, तो यानी -2 हो जाएगा। और क्या रह गया, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होगा, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4a हो जाएगा ना, तो a कितना है, a 2, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। और क्या रह गया इक्वेशन, और रह गया फोकल डिस्टेंस, तो फोकल डिस्टेंस a माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स, ये चेक कर लो, ये सारी चीजें आएंगी हमारे पास, ठीक है ना। So just do a small correction here, instead of -8 is x equal to a, direct answer x equal to 2 ही आएगा, right? So this is what we were doing in the first class of conic section parabola. We'll continue with the problem class and 2 more forms in our next class, right? So meanwhile you can send us your suggestions, like the video and let us know about it, right? So that's it for today, and we'll meet